Hello students, so myself Kalim Momin and I will be taking your lecture of BCO, that is building construction. So first of all we will see what is the teaching and examination scheme. Okay, so in examination scheme there is a total 150 marks exam. Okay, जिसमें से theory पेपर होता है हम लोगों का 70 मार्क्स. ओके, एंड प्रोग्रेसिव assessment, that is 20 marks for unit test average and 10 marks for micro project. ओके, तो इस तरह से थ्योरी के 100 मार्क्स कवर होते हैं और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इसमें ECE, दैट इज़ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25 मार्क्स, दैट इज़ वाइवा. ओके, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट दैट इज़ प्रैक्टिकल्स और ओरल एग्ज़ाम दैट इज़ 25 मार्क्स. ओके, तो इस तरह से थ्योरी 100 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स. ओके, तो टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज ऑफ 150 मार्क्स. ओके, सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज मेनली अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. ओके, सो हम लोगों को कौन से चैप्टर इसमें सीखना है? ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, दैट इज़ फॉर 8 मार्क्स. Construction of substructure, that is for 14 marks. Construction of superstructure, that is for 20 marks. Next chapter, building communication and ventilation, that is for 12 marks. Next, building finishes for 8 marks. And next, building maintenance for 8 marks. Okay, in overview of building components we will see the different components of building. Okay, and basic overview of building. Okay, then construction of substructure. So what is substructure? We all know substructure is a part of structure below ground level. Okay, so in second chapter we will study about the construction of substructure. In third chapter we will see superstructure. What is superstructure? So the structure above the ground level is known as superstructure. Okay, so construction of superstructure we will study in third chapter. Then the fourth chapter is building communication and ventilation. Okay, so what is building communication? Building communication means the passages and staircase and lift, whatever we use for the communication purpose. For horizontal communication we use passages, okay, lobby, etc. And for vertical communication we use steps, staircase and lift, etc. Then we will study in fifth chapter building finishes, that is plastering, painting, etc. And last chapter is building maintenance. In building maintenance, after the building is constructed we have to maintain it for a long life, that is long serviceability and durability. So in last chapter we will see what is building maintenance. Okay, so now we will start chapter 1. What is chapter 1? So chapter 1 is overview of building components. In this chapter we will see classification of buildings, building components and their functions, types of structures, steps for construction of building, stages of building construction, load bearing wall from foundation to parapet. Okay, so generally what is an overview of building? The basic need of human being are food, clothing and shelter. So एक बेसिक ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? रोटी, कपड़ा और मकान. ओके, सो द प्रिमिटिव मैन वॉज यूजिंग माउंटेनस केव्स एंड हॉलोज ऑफ ट्रीज एज शेल्टर. जो पुराने ज़माने में लोग थे वो लोग माउंटेनस केव्स और हॉलोज ऑफ ट्रीज यूज़ करते थे शेल्टर के लिए. बट देन ही फॉलोड द आर्ट ऑफ नेचर एंड कंस्ट्रक्टेड हिज फर्स्ट होम एज हट यूजिंग बाम्बूज एंड ल्यूज. सो उसके बाद में फिर आर्ट ऑफ नेचर से ह्यूमन बींग ने हट्स बनाना चालू किए बाम्बूज और ल्यूज का यूज़ करते हुए एज द फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर अ शेल्टर. मतलब जो पहले घर बनते थे वो सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, नीड ऑफ शेल्टर सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ घर बनाए जाते थे. ओके, मतलब ज़रूरत है घर की इसलिए घर बनाए जाते थे. ओके, फिर नेक्स्ट, नाउ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर विच वॉज द शेल्टर इन द प्रिमिटिव स्टेजेस एम्प्लॉयड मॉडर्न टेक्निक्स टू make the structure satisfy the practical need as well as to meet the aesthetical requirements. अब जो घर बनते हैं हम लोगों के, अब आर्ट आ चुका है स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए. ओके, तो अब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम लोग अपनी प्रैक्टिकल नीड्स को सामने रखते हुए, एस्थेटिकल रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए हम लोग अब घर बनाते हैं. ओके, अ मैन कंसीव्ड एन आइडिया ऑफ इंटेंडेड स्ट्रक्चर, असेस द रिक्वायरमेंट्स इन एकोमोडेशन
plan and design the structure to suit its purpose, giving due thought to site, climate, कैरेक्टर एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो अब जो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, प्लानिंग डिज़ाइनिंग करते हुए। ओके, और इसमें हम लोग कुछ पर्पसेस को भी ध्यान में रखते हैं। ओके, जैसे कि प्रैक्टिकल नीड्स है, हम लोगों के एस्थेटिकल रिक्वायरमेंट्स है। ओके, और साथ में हम लोग क्लाइमेट को भी कंसिडर करते हैं अब घर बनाते वक्त, कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग को कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रेशर एंड ड्यू टू द industrial developments and due to the needs of infrastructure development, many new methods and material of construction are developed। तो इकोनॉमिक प्रेशर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे बहुत ज़्यादा नीड आ चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और बहुत सारे न्यू मेथड्स कंस्ट्रक्शन के आ चुके हैं, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ओके, फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। ओके, पहले हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे, अब हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग कॉलम्स, बीम, स्लैब्स, ओके, रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से कास्ट करते हैं। ओके, और रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का हम लोगों को और क्या बेनिफिट है, तो हम लोगों की स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो चुकी है। ओके, अब हम लोग देखेंगे what is building, that is National Building Code of India defines the building as any structure for whatsoever purpose and of whatsoever material constructed and every part thereof whatever used for human habitation or not, includes all the structural elements like foundation, plinth, walls, floors, roofs etc। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ पर्पस के लिए बनाया जाता है कुछ मटेरियल का यूज़ करते हुए। ओके, और पर्पस क्या रहता है, ह्यूमन हैबिटेशन भी हो सकता है या फिर कोई और पर्पस भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ पर्पस के लिए बनाया जाता है कुछ मटेरियल का यूज़ करते हुए फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और नॉट, एंड इट इंक्लूड्स द एलिमेंट्स सच एज प्लिंथ, वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स एटसेट्रा। ओके, next, so we will see now classification of building। so what is classification of building? Generally building is classified as based on occupancy and based on structure। so first we will see what is the classification based on occupancy। okay, so this is the classification based on occupancy, residential buildings, educational buildings and all। okay, so we will see all this type of buildings one by one। residential building, so what is residential buildings? These buildings include any buildings used for normal residential purposes such as sleeping, cooking and dining facilities। okay, so कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं जिसके अंदर स्लीपिंग, कुकिंग, डाइनिंग फैसिलिटीज़ रहती है। ओके, इट इंक्लूड सिंगल और ट्विन यूनिट dwellings means single or row bungalows, apartments or flats, restaurants or hotels। this all comes in residential buildings। okay, so second part is educational buildings। what is educational buildings? this include any buildings used for school, college or daycare purposes involving assembly for instruction, education or recreation। ओके, तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो हम लोग स्कूल, कॉलेज या डे केयर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसी बिल्डिंग को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग्स बोलते हैं। ओके, सो थर्ड बिल्डिंग इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। दिस बिल्डिंग्स आर यूज फॉर पर्पजेज सच एज मेडिकल और केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस और डिजीज, केयर ऑफ इन्फेंट्स, ओके, convalescents or aged persons, and for penal or correctional detention in which the liberty of the inmates is restricted। मीन्स क्या, तो ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर मेडिकल और केयर फैसिलिटीज़ रहती है पर्सनस के लिए जो फिजिकल या मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों के हॉस्पिटल्स, सैनिटोरियम्स, नर्सिंग होम्स, ओके, और कैदियों को रखने के लिए हम लोग जेल्स का यूज़ करते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स। ओके, so all this comes under institutional buildings। this institutional buildings ordinarily provide sleeping accommodation for the occupants। okay, तो institutional buildings में sleeping accommodation provide किया हुआ रहता है occupants के लिए। okay, next building is assembly buildings। these are the buildings where a group of people meet together for amusement, recreation, social, religious, political, civil travel and similar purpose। okay, ऐसी जगह पे जहाँ पे सब ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे सब लोग
इकट्ठा होते हैं, ओके, कोई पर्पस के लिए। को पर्पस क्या होता है? अम्यूजमेंट हो सकता है, रिक्रिएशन हो सकता है, सोशल, रिलीजियस, ये सब पर्पस हो सकते हैं। वो कौन से बिल्डिंग्स हैं? तो थिएटर्स, मोशन पिक्चर, हर हाउस, असेंबली हॉल्स, मैरिज हॉल्स, ओके, म्यूजियम्स एट्सेट्रा, ये जितने भी जगह है ये असेंबली बिल्डिंग्स के अंदर क्लासीफाई होती है, ओके। नेक्स्ट बिल्डिंग इज बिजनेस बिल्डिंग्स। So business buildings, what is business buildings? These buildings are used for transaction of business, for keeping of accounts and records and for similar purpose. ओके, तो ऐसी बिल्डिंग जो बिजनेस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि ऑफिस, बैंक्स, प्रोफेशनल्स एस्टेब्लिशमेंट्स, कोर्ट्स, हाउसेस, लाइब्रेरीज एसेट्रा, ओके। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज ट्रांजेक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेस एंड कीपिंग ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ओके। Next building is mercantile buildings. These buildings are used as shops, stores, market for display and sale of merchandise, either wholesale or retail. Okay, तो ऐसे बिल्डिंग्स जो शॉप, स्टोर्स और मार्केट के लिए यूज़ की जाती है, या फिर ऐसे स्टोर्स को हम लोग मर्केंटाइल बिल्डिंग्स में क्लासीफाई करेंगे जो होलसेल और रिटेल बिजनेस का काम करते हैं, जैसे कि हम लोगों की स्टेशनरी शॉप्स, ओके, उसके बाद में वेजिटेबल शॉप्स, kirana stores, etc. Okay, next building is industrial buildings. These are the buildings where products or materials of all kinds and properties are fabricated, assembled, manufactured or processed as assembly plants, laboratories. Okay, तो ऐसे buildings जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ वाला कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, ओके। ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में क्लासीफाई करते हैं, ओके, जैसे कि असेंबली प्लांट्स, लेबोरेटरीज, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, डेयरीज एंड सॉ मिल्स एसेट्रा, ओके। नेक्स्ट बिल्डिंग इज स्टोरेज बिल्डिंग. दिस बिल्डिंग्स आर यूज प्राइमरी फॉर द स्टोरेज और शेल्टरिंग ऑफ गुड्स, वेयर्स और मर्केंडाइज, ओके। तो ऐसी बिल्डिंग्स जो स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, स्टोरेज एंड शेल्टरिंग के लिए यूज़ होती है, गुड्स, वेयर्स, मर्केंडाइज, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स, ये सब इसके अंदर क्लासीफाई होते हैं. फ्राइड डिपॉट्स, ट्रांजिट शेड, स्टोर्स, क्रेन एलिवेटर्स, स्टेबल्स, ये सब स्टोरेज बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल्स है, ओके. नेक्स्ट बिल्डिंग इज हजार्डस बिल्डिंग. सो दिस बिल्डिंग्स आर यूज फॉर द स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स which are liable to burn with extreme rapidly and which may produce poisonous elements or explosives. ओके, सो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को स्टोर करते जो लाइबल टू बर्न है, ओके, और जो पॉइजनस है, एक्सप्लोजिव्स है, ओके. तो ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोग हजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं, ओके. सो ऐसी बिल्डिंग्स में क्या रखा जाता है, तो टॉक्सिक्स और नॉक्सियस अल्कलीज, एसिड्स, अदर लिक्विड्स, केमिकल प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स एसेट्रा को ऐसी बिल्डिंग्स में रखा जाता है, ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन लोड्स कौन से जो बिल्डिंग्स पे आते हैं, ओके. तो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ऑल पॉसिबल लोड्स कमिंग ओवर इट. द वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स आर एज फॉलोज, ओके. तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो भी उसके ऊपर पॉसिबल लोड्स आने वाले हैं वो उसको आसानी से ले सके, ओके. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कौन से होते हैं, तो पहला है डेड लोड, मीन्स जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं उसका खुद का लोड, ओके. फिर सेकेंड है लाइव लोड, ओके, मतलब हम लोगों का लोड. फिर थर्ड लोड है विंड लोड, फोर्थ लोड इज अर्थक्वेक लोड और लास्ट है स्नो लोड, ओके. सो टुडेज लेक्चर वी विल एंड हियर एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके. थैंक यू.